respected ma'am, and my dear friends. Very warm and pleasant afternoon to all. My name is Naveen Kumar from BSc Nursing second year. I'm glad to say that I have a golden opportunity to present my presentation on the topic food poisoning in front of you. So, like food poisoning. Yeah, food poisoning. It sounds very normal and easy, but not it is. And I'm going to blow your mind about the food poisoning. So, without wasting our time, let's get started. First of all, we have to see introduction. Introduction. The food poisoning is an unpleasant illness which is caused by eating contaminated food. That includes food which has been poorly prepared, cooked at the wrong temperature, or as result of poor hygiene. It can also occur if raw food is stored next to the cooked food. According to the introduction, anything which you eat, like food or beverage, what you drink, if it is contaminated, it has some pathogens and chemicals. It causes what? It causes food poisoning. Either if you are not maintaining the hygiene, your food is not hygienic, then also you can fall in what? In food poisoning. Okay. Come to the definition. इंट्रोडक्शन डी करा टॉपिक पर जैसे डी करेंगे डाउट क्लियर है पूछ लेंगे Now, introduction is clear to all? Yes. Louder! Clear to all? Now, according to WHO, keep silent. According to WHO, actually food poisoning is what? Foodborne illness are usually infections or toxins in nature and caused by bacteria, viruses, parasites, chemical substance enter the body through contaminated food. Again, according to the WHO, in our definition which is given as what? Whom? The WHO, the World Health Organization. Okay. So according to the WHO, food poisoning is just a foodborne disease. Like you ever heard about the waterborne disease, vector-borne disease. It's what? It's foodborne disease. Okay, foodborne illness in which if you are drinking or eating something which have some pathogens, bacteria, viruses or pathogens वगैरह. Now then what? And the other chemicals. You have some question. What are the chemicals? Chemicals like parasites. What? Pesticides or fertilizers and other things like arsenic or some allergic plants which cause what? Food poisoning to the body. Okay, this all are come in the word food poisoning. This definition is given by whom? The WHO. Whom? WHO. Yeah. Is it clear? The definition? Now, if I talk about the epidemiology. अगर एक एस्टिमेट लेके चले, ठीक है, इफ यू टेक एन एस्टिमेट, तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, तो लगभग 600 मिलियन पीपल्स आर सफर फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग डिसीज. हाउ मच? 600 मिलियन. बट 600 मिलियन वर्ल्ड वाइड आंकड़ा है कि अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो वर्ल्ड वाइड कितने मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हो रहे हैं? 600 मिलियन. ठीक है. जैसे 10 में से एक इंसान, ठीक है, 1 person from 10 there is a 1 person who is infected by food poisoning. Okay. Now next बात करें हम people are also died with the cause of what? Food poisoning. लगभग if I आंकड़ा की मिलाएं तो what? 4.2 million people. What? 4.2 million people die every year just because of the food poisoning. ठीक है, इसलिए इस फूड पॉइजनिंग एकदम हल्के में नहीं लेना. ठीक है. Now, now classification. If I talk about the classification of the food poisoning, so there are major 2 classifications. How many? Two classifications.
बट पीछे से आवाज नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो टू क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट वन क्या होगा? नॉन बैक्टीरियल. तो नॉन बैक्टीरियल एक्चुअली इट्स एक्सप्रेस इट्स मीनिंग. हाउ? नॉन बैक्टीरियल इट मींस देयर इज नो एनी रोल ऑफ बैक्टीरिया. देन व्हाट इज देयर? क्या होगा यहाँ पे? So there is a chemicals like arsenic, pesticides, fertilizers and others. Like you also use some sweeteners in your food. Okay, for the flavors. They all are what? Chemicals. Okay, so they are non-bacterial. It's also cause what? They all cause what? Food poisoning. The second one is what? Bacterial. It also expresses its meaning. There is a role of bacteria which cause what? Food poisoning. What? Which cause food poisoning. Now, the further like pathogens, bacteria, viruses, parasites, they all come in under what? Bacterial food poisoning. Now, as the further classification, there is a sub classification of bacterial food poisoning. What they are? तो नंबर 1 में आएगा क्या? सैल्मोनेला. एफपी मतलब होगा फूड पॉइजनिंग. सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग. तो एक्चुअली द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिस जो मैं अभी लिखने जाऊंगा, दे आर द मेजर बैक्टीरिया व्हिच कॉज फूड पॉइजनिंग. तो फर्स्ट वन वाज सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग. एक्चुअली द food poisoning just occurred due to the bacteria salmonella. It's come under the salmonella food poisoning. So next, is what? Staphylococcal food poisoning. What? Staphylococcal food poisoning. So the food poisoning actually occurred due to the staphylococci bacteria. What? Staphylococci bacteria. So it's come under the what? The staphylococcal food poisoning. Now third one is what? Botulism. Botulism food poisoning. Okay. So in this there is some bacteria. Here bacteria's name is Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. This is a bacteria name. Remember this name. I will ask the question in the last. Okay. Now we are going Clostridium botulinum. This is a major bacteria which come under the word botulism food poisoning. बोटुलिज्म फर्दर और भी क्लासिफिकेशन है जिसके कारण कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, बट इट इज अ मेजर. इसके चलते काफी ज्यादा ये देखा जाता है ना. अगर इसका हम लोग बात करें सैल्मोनेला, ठीक है, अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें, अगर इसका सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का अगर इंक्यूबेशन का बात करें हम लोग, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सैल्मोनेला बैक्टीरिया? तो यहाँ क्या होगा? 12 to 24 आवर. What? 12 to 24 आवर. Now next अगर हम लोग बात करें किसका? स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग का, तो इसका बहुत कम होता है. जैसे इंक्यूबेशन में काफी लेस होता है, ठीक है. इसका कितना होता है? 1 to 6 आवर. 1 to 6 आवर. हाँ. Now next अगर हम बोटुलिज्म का अगर इंक्यूबेशन पीरियड का बात करते हैं, इसका जो ये होता है काफी ज्यादा होता है. कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड? 12 to 36 आवर. What? 12 to 36 आवर. So these are the classification. If you want to write in a notebook, then you can. Now, after the classification, what? After the classification, we should see what? The etiology. Etiology means what? Causes. What are the major causes of food poisoning? Etiology. ठीक है. तो I delivered the introduction of food poisoning. Is it or not? After definition, by this intro and the definition, you can guess what are the major causes of
food poisoning. Yes, Yati Priya, stand up. Yes, Yati Priya, stand up. Fast. What are the etiology? Major causes. Thank you, very good. No, sir. Yati Priya is right. The contaminated foods and beverage. Beverage means what? We are drink alcohol, but beverage. तो beverage में जैसे क्या कि किसी से contaminated होंगे by the chemicals, what by the chemicals, by the parasites, like और chemicals like what? Arsenic, fertilizers, pesticides, they all are causing food poisoning. ठीक है? उसे हमने एपिडेमियोलॉजी देखा, एपिडेमियोलॉजी हमने क्या देखा कि 600 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड क्या होता है फूड पॉइजनिंग से सफर करते हैं. उसके बाद से 4.2 मिलियन पीपल फूड पॉइजनिंग जैसे डिसीज कंडीशन के कारण क्या होते हैं डाई कर रहे हैं. ना हमने उसमें क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में हमने 2 क्लासिफिकेशन कितने क्लासिफिकेशन देखे? यस, कितने क्लासिफिकेशन देखे? फर्स्ट वन second one is bacteria. Sit down. Thank you. तो पहले हमने देखा नॉन बैक्टीरियल और सेकंड वन हमने देखा बैक्टीरियल. नॉन बैक्टीरियल केमिकल्स वगैरह आते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इट्स ऑल क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट बैक्टीरियल. बैक्टीरिया में हमने क्या देखा? सैल्मोनेला हो गया, स्टाइलोकोकस हो गया, बोटुलिज्म हो गया. दे आर कॉज द बैक्टीरिया व्हिच कॉज द फूड पॉइजनिंग. नाउ नेक्स्ट हमने देखा क्या इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा था? इंक्यूबेशन पीरियड देखा. अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड था. जैसे सैल्मोनेला का कितना था? सैल्मोनेला का 12 से 24. ना उसके साथ हमने देखा इटोलॉजी हमने देखा कि भाई क्या क्या हो सकते हैं, पैरासाइट, पैथोजन, ये सब देखा. नाउ नेक्स्ट हमने देखा व्हाट वी सॉ द हायरिक सूट क्या होते हैं. फिर पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात किया कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे फूड पॉइजनिंग क्या अगर हो रहा है, साइनस सिम्टम्स हमने देखा. नाउ नेक्स्ट हमने फिर साइनस सिम्टम्स के बारे में बात किया. हमने क्या किया? साइनस सिम्टम्स के बारे में बात की. साइनस सिम्टम्स को क्या कहते हैं? नोजिया, डायरिया, abdominal pain, headache, fever, dizziness हमको दिखता है. उसके बाद से हमने क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. तो हम क्या क्या करेंगे? फिजिकल ओपीएम को देख लिया और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करें हमने वो भी देख लिया. नाउ नेक्स्ट हमने और क्या देखा? कॉम्प्लिकेशन कि एकदम रेयर केसेस जो होते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं. नॉर्मली 2 केसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन में. डायरिया होता है, डायरिया होता है और दूसरा होता है ह्यूमोलाइटिक यूरिनरी सिंड्रोम. ठीक है, 2 चीज होती है. और रेयर केसेस में आर्थराइटिस, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, बोवल इरिटेशन सिंड्रोम्स, ये सब ब्रीदिंग डिफिकल्टी ये सब होता है. नाउ नेक्स्ट हमने देखा क्या फैक्टर अफेक्टिंग द फूड. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फूड को क्या अफेक्ट करते हैं. अगर हम उसको मेंटेन करेंगे तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगा, और नहीं करते तो हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है. नाउ नेक्स्ट हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट होता है कि हमने क्या ट्रीटमेंट वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या क्या एंटीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स हो गया, क्या एंटी पैरासाइट्स हो गया, क्या एंटी डायरियल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, हम क्या करेंगे. नाउ नेक्स्ट हमने बात किया नर्सिंग डायग्नोसिस. एज ए नर्स हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस क्या नर्सिंग मैनेज. फिर हमने देखा क्या नर्सिंग मैनेज. एज ए नर्स हम लोग क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इन द केयर ऑफ होम, इन द केयर ऑफ पेशेंट. अब नेक्स्ट हमने नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में किया कि नर्स है तो आप क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं. दूसरा हमने बात किया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. प्रिवेंशन इज कंट्रोल इज वेरी important. Prevention is control. क्यों important है? Because everyone say that prevention is better than cure. ठीक है, it's तो हमेशा prevention control का हमेशा ध्यान में रखना है. Now next was health education. कि हम लोग health education लोगों को क्या क्या दे सकते हैं. तो it's our what the summary. हमने अभी तक जो कि क्लास में देखा उसका एक क्या था? Summary. Now next is conclusion. Before the conclusion, I want to ask some question from you. Yeah. The first one is, what is the botulism food poisoning bacteria name? Yeah, very good. Sit down. Thank you. Equalostridium botulinum is the name of what? Botulism bacteria, which cause what? The food poisoning. Okay. Yes, yeah, Yati Priya, stand up. What is the incubation period of Salmonella? 24 hours. Yes, you Monica, stand up. Stand up. जो हमने अभी botulism
फूड पॉइजनिंग की बात की, उसका क्या हो सकता है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? 12 to 36 आवर्स। थैंक यू। हाँ, what is this? 2 है। एक बार सबका बारी आएगा भाई, ठीक है। 2 एंटीबायोटिक्स का नाम कौन बताए? सुमित जी, चलो 2 एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का नाम। एंटीबायोटिक का हाँ, बस हो जाए एंटीबायोटिक वगैरह जो उनका पेनिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गया, केटारासिन, ये हो गया। हम नेक्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। हमने इतना कुछ देखा, ठीक है, समरी भी देख लिया। नाउ कंक्लूजन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समरी एंड कंक्लूजन। देयर इज अ, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि समरी क्या है डिफरेंस और कंक्लूजन क्या है। तो नॉर्मल सा समरी, व्हाट वी सॉ, उसको शॉर्ट में बताना, इट्स कॉल्ड समरी। व्हाट वी लर्न इन द लेसन प्लान इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है। इट्स नॉट कंक्लूजन। तो व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा कि अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, ठीक है, ठीक है। लेसन प्लान में फूड पॉइजनिंग ऐसी डिसीज नहीं है जिसको काफी हल्के मिले, इसका जो ट्रीटमेंट है आप लोग, इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है? फैमिली करना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? फैमिली करना है, ठीक। एट द लास्ट ये कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, एट द अकॉर्डिंग टू मी द स्लोगन इज व्हाट? ईट हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।